Hello students, welcome to last video of this week. I hope you are all enjoying and learning through these video sessions. So in our previous class we are talking about the properties of multiplication of integers, and we have completed our first property, that is the commutative property of multiplication. Okay, so in this we have seen this table in which we have chosen two numbers and we multiplied in the order of a multiplied by b, and then we multiply in the order b multiplied by a, and then we see that those products are equal or not. So we see that those products are equal, and on the basis of this we concluded that the commutative property holds for integers under multiplicative. Okay, so that is a multiplied by b is equals to b multiplied by a. Okay, that is for all integers. Okay, a and b are integers. Okay, जनरल वे में हमने लिखा है. और लास्ट क्लास में मैंने जैसे बताया था आपको कि हम नेक्स्ट क्लास में मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो के बारे में बात करेंगे. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो के पहले हम होल नंबर्स की बात करते हैं. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ होल नंबर्स. ओके, सो होल नंबर्स का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ज़ीरो के साथ में, जैसे कि 63 इंटू ज़ीरो, देन 64 इंटू ज़ीरो, 5 इंटू ज़ीरो, 33 इंटू ज़ीरो, 25 इंटू ज़ीरो, एंड देन लास्ट वी हैव 49 इंटू ज़ीरो. तो इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे मेरे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा? सब में एक चीज़ कॉमन है, ज़ीरो, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो देख रहे हैं. तो होल नंबर्स का सबसे पहले हम देख रहे हैं. तो मल्टीप्लिकेशन जब भी हम होल नंबर्स का कर रहे हैं ज़ीरो के साथ में, you already know that all will get the answer 0. ओके, ज़ीरो का किसी भी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो आता है, ये आपको मालूम है. ओके, देन वी विल मूव टू द इंटीजर्स. Okay, so you already know about the integers. Integers will have positive numbers and negative numbers. So positive numbers will cover the whole number. So, and we already seen that the positive numbers multiplication with 0 will always give 0. Okay, so now we will see the negative numbers. Okay, so minus 3 into 0, minus 25 into 0, minus 18 into 0 equals to, then minus 23 multiply with 0, minus 46 multiply with 0, and minus 37 multiply with 0. Okay, so these are some negative numbers or some integers on which with multiplication of 0 we have to find the product. Okay, so you may know that, or I don't know you know or not, but then any numbers on which you multiply with 0 always gives you 0. It doesn't matter it is an integer or whole numbers, a natural number, a negative number, a rational number, or any number. Okay, so 0 multiply with any number, any negative integer or positive integer will always give you 0. Okay, so this result will be, this product will be 0. Okay, so from on this, in this result we can conclude that multiplication of integers by 0 will always get 0. Okay, जनरल फॉर्म में लिखे तो that is, if you multiply an integer, that is a, with 0 or any order, okay, it will always give you 0. So this is the multiplication by 0. Okay, then the next topic is multiplicative identity. So अगर आप इस नंबर्स, इन ये टर्म्स को देखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव एंड देन आइडेंटिटी. ओके, मल्टीप्लिकेटिंग मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करना,
आइडेंटिटी का मतलब होता है कि एक जैसा होना, मतलब ओके एक जैसा रहना। तो इन दोनों का अगर मैं टर्म्स साथ में लिखता हूँ तो मतलब क्या रहा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लिकेशन करने पे भी सेम रहना। ओके कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं हम। होल नंबर से स्टार्ट करते हैं। ओके होल नंबर में अगर मैं, ठीक है मैं एग्जांपल लेता हूँ 17। ओके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लिकेशन साइन, आइडेंटिटी मतलब वैसा ही रहना, वैसा रहना मतलब 17। ओके मतलब ये कि मैं 17 में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि मल्टीप्लाई करने पे मैं वैसा ही रहूँ। ओके अगर मैं नंबर 17 हूँ, ठीक है अगर मैं 17 नंबर हूँ ओके ठीक है, आपके सर जो है 17 नंबर है, 17 नंबर में अपने आप को, अगर मैं अपने आप को ऐसा क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ कि मैं वैसा कि वैसा ही रहूँ। ओके तो वो नंबर होना चाहिए 1। 17 से अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 17 ही मिलेगा। तो इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके आपने क्या किया है, आपने मल्टीप्लाई किया है 17 में, ठीक है ये 7 जो मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। आइडेंटिटी का मतलब मल्टीप्लिकेशन का, आइडेंटिटी का मतलब है कि वैसा ही रहा, ठीक है मतलब और इन दोनों के साथ में अगर मैं देखूंगा तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लिकेशन हमने करा है कोई से भी नंबर में और मल्टीप्लिकेशन करने पे भी वही नंबर मिला, तो हम बोलेंगे कि 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके सो दिस इज़ द अबाउट द होल नंबर्स। इंटीजर्स के बारे में भी देख लेते हैं हम। इंटीजर्स का केस लेता हूँ मैं, तो इंटीजर्स के केस में मैं एक नेगेटिव नंबर ले लेता हूँ वापस से, क्योंकि होल नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स तो आ ही गए हैं, तो इट विल whole numbers will cover the positive side of the integers number, so I will just have to check the negative numbers. Okay so what should I multiply in -6, so to get -6, similarly -14 मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँगा कि मेरे को -14 ही मिल जाएगा। ओके सो द आंसर शुड बी, मेरे को 1 मल्टीप्लाई करना चाहिए, -6 में मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो मेरे को -6 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर -14 में अगर मैं 1 वापस मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को -14 मिल जाएगा। ओके लेट्स टॉक अबाउट सम अदर एग्जांपल टू। -46 मल्टीप्लिकेशन विथ समथिंग गिव्स यू -46 एंड -33 multiplication with something gives you -33. Similarly -79 multiplication with something gives you -17. ओके यहाँ पे क्या होगा, सब में आएगा 1। ओके सो वी कैन से दैट 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। ओके तो ये था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का। ओके तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप समझ गए। अब अगर मैं बोलूँ, पहले इसका हम जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखूँगा तो वो ये होगा 1 देयरफॉर, पहले लिखता हूँ कंक्लूजन लिखते हैं हम, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव identity, okay, that is 1 multiply with any integer a is equals to a multiply with any integer, sorry any integer multiply with a 1 always gives you the same integer. Okay this is about the multiplicative identity. okay suppose अगर मैं यहाँ पे 17 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ -1 के साथ में, तो मेरे को क्या मिलेगा -17, isn't it? ओके अब इसके बाद में अगर मैं -3 का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ -1 के साथ में, तो क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा +3। 2 माइनस साइन है मतलब 2 होगा, इवन नंबर होगा, इवन के लिए हम क्या करते हैं, साइन लेंगे प्लस साइन। ओके सिमिलरली अगर मैं 6 में मल्टीप्लाई करता हूँ -1 का, तो मेरे को मिलेगा -6, इज़न्ट इट? तो अगर आप इन नंबर्स को देखेंगे, सिर्फ ये मैं -1 को अगर मैं यहाँ पे छुपा लेता हूँ, ठीक है मैं -1 को मैंने ऐसा छुपा लिया, ठीक है, और से आप इन नंबर्स को देखो, इन नंबर्स को देखो, 17 का हो गया -17, -3 का हो गया +3, 6 का हो गया -6। मतलब क्या हुआ कि आपने एक ऐसे नंबर से कोई से भी इंटीजर को मल्टीप्लाई किया
तो आपको उसका नेगेटिव मिल गया। ओके, मतलब अगर हमको कोई से भी नंबर्स का नेगेटिव चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे दैट वी विल मल्टीप्लाई दैट नंबर विथ -1 सो दैट वी कैन गेट द नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। ओके, सो वी विल से दैट ऑन द बेसिस ऑफ दिस if we multiply -1, if we multiply a number by -1 we get its negative। okay, negative of its number or inverse of additive inverse of this number। okay, additive inverse अब मालूम है आपको क्या हो गया, ठीक है। so this is about the multiplicative identity। okay, now let's move towards our next property which is associative property। okay, सो व्हाट डू यू मीन बाय एसोसिएटिव। ओके, अभी तक जितनी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी ये तो आपकी पढ़ी हुई थी, आपने इसको देखा था। आई थिंक मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो यू ऑलरेडी नो दैट मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर का ज़ीरो से करते तो हमको ज़ीरो मिलता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के केस में भी आपका यही था कि आपको ये मालूम था कि किसी भी नंबर से अगर मैं 1 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो वो वही नंबर मिलेगा, लेकिन आपको उसको टर्मोलॉजी नहीं मालूम थे कि क्या बोलते, ठीक है। लेकिन बट here the associative property will be different for you। how it is different? okay, suppose I have an example, you have to find the product of these three number 5 multiplied by -6 and -3। okay, so in our class there are many students sitting at different benches। okay, these are different benches, ठीक है, और भी बेंचेस होगी लेकिन मैं इतनी 8 बेंचेस के बारे में बात करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे है मेरे पास एक स्टूडेंट और यहाँ पे है एक दूसरा स्टूडेंट। यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट है नेम ऑफ अनिल। ओके, दूसरा स्टूडेंट सबसे लास्ट में जो बैठा है उसका नाम है सुमित। ओके, मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय -6 एंड मल्टीप्लाई बाय -3। ओके, जैसा कि अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्टूडेंट है अनिल और सुमित, उन्होंने जो प्रोडक्ट फाइंड किया वो कैसे किया देखते हैं। अनिल ने क्या करा, मल्टीप्लाई करना था तो मल्टीप्लाई पहले लिख देता हूँ कैसे करना था, इनका सिंपली हमको ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना था, है ना। तो अनिल ने क्या करा, अनिल ने सबसे पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करा, तो ब्रैकेट में ओके, ब्रैकेट का मतलब आपको पहले से मालूम हुआ बॉडमास रूल। जब भी हम सॉल्व करते हैं, जब भी हम कोई सा भी क्वेश्चन या फिर जब भी ये अर्थमेटिक ऑपरेशन जब भी सॉल्व करते हैं तो हम बॉडमास रूल फॉलो करते हैं। बॉडमास रूल का मतलब क्या है, ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑपरेशन, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो सबसे पहले बी मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब कि जो भी ब्रैकेट में होगा उसको सबसे पहले हम मल्टीप्लाई जो भी करेंगे, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सबसे पहले उसी में करेंगे। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई बाय -6 तो -30। ओके, देन -3 एज इट इज़। ओके, 33 जा 90 होता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस कितने साइन है, 2 साइन है, 2 मतलब इवन हो गया, इवन मतलब फाइनल साइन क्या रहेगा प्लस का, तो प्लस का साइन। ओके, सो अनिल सॉल्व बाय दिस प्रोसेस। नाउ सुमित, ओके, सुमित ने किससे सॉल्व किया, सुमित ने सॉल्व ऐसा करा कि सुमित ने मल्टीप्लिकेशन करा 5 - 6 मल्टीप्लिकेशन विथ -3। तो सुमित ने क्या करा, सुमित ने इन दोनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई किया, दैट इज ही मल्टीप्लाई फर्स्ट -6 एंड -3, फर्स्ट ही मल्टीप्लाई विथ -6 एंड -3 एंड देन ही मल्टीप्लाई 5 इन इट। सो 5 एज इट इज, -6 and -3 multiply with, I am getting here 18, and then 18 multiply by 5 or 5 multiplied by 18 gives me 19. okay, you can see that अनिल और जो सुमित जो स्टूडेंट थे वो बहुत दूर दूर बैठे थे। ओके, तो चीटिंग तो नहीं कर सकते, है ना, चीटिंग करने का तो उनके पास चांस ही नहीं है। उन्होंने क्या करा, 2 डिफरेंट मेथड से मल्टीप्लिकेशन करा। अनिल ने क्या करा था, पहले फर्स्ट 2 मेथड को मल्टीप्लाई करा, फर्स्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करा। सुमित ने क्या करा, सबसे पहले जो सेकेंड और थर्ड नंबर्स थे लास्ट 2 नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको फिर फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया। तो और इनका आंसर आप देखोगे तो दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इजंट इट। सो यहाँ पे चीटिंग तो इन्होंने कर नहीं सकते कि यहाँ से अनिल हमको आंसर बता दे कि यहाँ पे 90 आ रहा है। ओके, सो चीटिंग का तो कोई रोल ही नहीं है। सो दिस
अगर आप इस प्रोसेस को देखोगे, दिस मेथड को देखोगे, तो ये एक प्रॉपर्टी है. व्हाट प्रॉपर्टी? इट इज़ कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, सो अगर आप इनका ऑर्डर देखोगे, इनको अगर आप देखोगे कि अनिल ने मल्टीप्लाई किया पहले 5 और -6 का एंड देन -3 का, एंड द प्रोडक्ट विल ऑल्सो इक्वल्स टू by the method which the product is equals to the result which is getting by the Sumit in his process of multiplication like this. Okay, तो पहले दो नंबर्स को अगर आप 3 नंबर्स को मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो इट डजेंट मैटर, यू चूज फर्स्ट टू multiplication first and then multiply with 3 with third number, or you multiply second and third number first and then multiply it with the first number. Okay, you will always get the same result. Okay, I will solve another example just to give you a proof it is. Okay, तो सबसे पहले 2 multiply by -69 50 करते हैं तो ये होगा -138 मल्टीप्लाई बाय 50 विल गिव मी -6900. ओके, सिमिलरली अगर मैं फर्स्ट नंबर को पहले मल्टीप्लाई ना करूँ, फिर पहले सेकेंड नंबर को और थर्ड नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा? 2 मल्टीप्लाई विथ -3450 इक्वल्स टू -6900. Okay, so you can see this, the result is also again same. So in general में क्या लिखेंगे हम? A multiply by B into C equals to A multiply by B multiply by C. Okay, so it doesn't matter, you multiply the any 3 number according to any 3 number in which order. Okay, you will always getting the same result. So this is called the associative property. Okay, okay, so we learned about the associative property. We also learned about the multiplication by 0 and multiplicative identity. So the next property is the distributive property of multiplication over addition. Okay, तो यहाँ पे मेरे पास एक ना क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशन का कि मेरे को -5 मैंने दिया है, बोर्ड पे लिखा है, ठीक है, -5 मल्टीप्लाई विथ 4 + 6. ओके, तो आप क्या करोगे? -5 लिखोगे, इस 4 + 6 को ऐड कर दोगे 10, सो दिस विल गेटिंग -50. ओके, बट अगर मैं इसको ऐसा करूँ कि -5 को मैं पहले 4 से मल्टीप्लाई करूँ और फिर यहाँ पे जो प्लस साइन है उसको ऐसे वापस लिख दूँ, फिर -5 को मल्टीप्लाई करूँ 6 के साथ में. ओके, क्योंकि ये जो ब्रैकेट्स है, आपको ब्रैकेट यूज़ करना आता होगा, 6th क्लास में आप पढ़े हैं कि ब्रैकेट कब यूज़ करते हैं, जब भी हम कोई से भी चीज़ों को कॉमन लिखते हैं. ठीक है, -5 मल्टीप्लाई विथ ब्रैकेट मतलब कि -5 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी यहाँ पे ब्रैकेट लगा रखा है. ओके, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में -5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज to -20 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 6 gives me -30. ओके, सो दिस केस में in this case -20 -30 give me -50. ओके, तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि -5 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 + 6 से, तो उसमें मैंने पहले 4 + 6 को मैं ऐड करके फिर मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर मैं पहले इनको कॉमन जो कर रखा है ब्रैकेट ओपन करके अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो भी मेरे को रिजल्ट सेम मिल रहा है. ओके, दिस इज़ व्हाट वी कॉल द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. मतलब हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या होता है, कोई से भी चीज़ों को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बांट देते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमने -5 को भी क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है 4 और 6 में, इजंट इट. देखो, अगर आप देखोगे तो -5 मल्टीप्लाई 4 + 6. ओके, तो हमने क्या करा, इसको एडिशन नहीं करा, ठीक है, ऐड नहीं करा, राइट, मल्टीप्लाई कर दिया. कैसे? -5 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 4 में, तो ये -5 को 4 से डिस्ट्रीब्यूट करा, फिर प्लस साइन एज इट इज़, फिर
-5 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 6 के साथ में, ओके। तो हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है इसलिए मल्टीप्लिकेशन। अब ओवर एडिशन मतलब क्या कर रहे हैं हम कि -5 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एडिशन करने के बजाय, ठीक है। हमने यहाँ पे एडिशन नहीं करा और उसका मल्टीप्लिकेशन करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओके। तो एक एग्जांपल और देखते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई -10 + 7, इसको भी देख लेते हैं एक बार। कैसे, 3 मल्टीप्लाई -10 + 7 कितना होगा, -3 होगा, तो ये क्या होगा, -9, ओके। बट अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करके कैसे, 3 मल्टीप्लाई बाय -10 पहले, देन प्लस एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके। जो भी ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ मल्टीप्लिकेशन साइन से आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है सबके अलग अलग के साथ में, ठीक है। जैसे पहले 3 का मल्टीप्लाई होगा -10 के साथ में, फिर मल्टीप्लाई होगा 3 का 7 के साथ में, ओके। तो 3 का मल्टीप्लाई किया -10 के साथ में, फिर जो साइन है उसको आपने ऐसे लिखोगे, ओके। देन 3 का मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ में, तो 3 का मल्टीप्लाई 7 के साथ में, ओके। सो वी कैन राइट -30 + 21 is equals to -9 again, ओके ओके। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, -9 का मल्टीप्लिकेशन -4 + -2 के साथ करता हूँ। तो जनरली आप कैसे करते हो, -9 को मल्टीप्लाई कर दे, -4 + -2 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो -6 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 9 जा 54, ओके, प्लस का साइन। बट अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करूँगा तो 9 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले -4 के साथ में मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ, एंड देन -2 के साथ में, और जो साइन है बीच में इनके बीच का एडिशन उसको ऐसे किए ऐसे, ओके। तो इसको प्लस कर लेते हैं हम, क्या है इसका रिजल्ट, 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, ओके। तो विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 54, ओके। तो आपने ये देख लिया कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करा, और उसको यूज़ करने के बाद में जो सम था वो दोनों का सेम ही आ रहा है उनमें, सॉरी जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो इसका रिजल्ट है वो सेम ही आ रहा है, कुछ डिफरेंस नहीं है इसमें, इजंट इट। तो इसके जनरल हम क्या लिखेंगे, वी कंक्लूड दैट इफ a, b and c are integers, then a multiply by b plus c is equals to a multiply by b plus a multiply by c, okay. So this is the distributive property of multiplication ओवर एडिशन, ओके। मतलब हमने क्या किया, एडिशन करने की बजाय हमने उसको जो एक था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली में, ओके। b + c जो एडिशन कर रहे हो रहा था पहले, तो एडिशन नहीं किया हमने, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक के साथ में, ओके। फिर इसके बाद में सिमिलर प्रॉपर्टी है बिल्कुल, बट चेंजेस का आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ओके। जैसा कि हमने यहाँ पे क्या कहता है, एडिशन किया था, अब क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन करने के बजाय हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। तो अब चेंज कहाँ पे आएगा वो आप देखेंगे कहाँ पे, ओके। सपोज आई हैव एन एग्जांपल है, मल्टीप्लाई -35 बाय -37 -97। तो आप क्या करेंगे, -35 और -97 को कुछ इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 35 24 45 और फिर 31 ऐसे करके ऐड करके आपने इसको लिख दिया कि ये आपका सर रिजल्ट आएगा। बट अगर मैं इस यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाऊँ, कैसे, -35 मल्टीप्लाई विथ इस -97 को मैं b + c के फॉर्म में लिखो, कैसे लिख सकता हूँ, -97 को मैं लिख देता हूँ 100 + 3 -100 + 3, इजंट इट, नहीं लिख सकता। -100 + 3 करूँगा तो क्या आएगा मेरे को, -100 + 3 करूँगा तो मेरे को ना -97 ही मिलेगा, ओके। तो हमने क्या करा, -97 को एज अ सम ऑफ 2 इंटीजर्स लिखा है, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ, इजंट इट। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लगाता हूँ, -35 पहले मल्टीप्लाई होगा -100 के साथ में, देन प्लस साइन, सो प्लस हियर, -35 का मल्टीप्लिकेशन
+3 के साथ में। सो -35 का मल्टीप्लिकेशन 100 के साथ होगा, क्या होगा 3500 प्लस -35 का होगा 105 माइनस साइन से, तो 3500 minus 105 will give you 5933, isn't it? तो सेम रिजल्ट आया। तो विच इज़ बेटर, विच इज़ ईजियर, ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना या ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से यूज़ करके निकालना। तो आई थिंक दैट यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी कैन ईजीली सॉल्व दिस मल्टीप्लिकेशन, isn't it? ओके, तो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, देन वी विल कंक्लूड आवर सेशन ऑफ टुडे। 532 मल्टीप्लिकेशन विथ -15 करना है, तो क्या करेंगे, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में लिखता हूँ पहले। तो 532 मल्टीप्लिकेशन विथ, अब -15 को मैं किसके फॉर्म में लिख सकता हूँ? ओके, तो अगर आप यहाँ पे अगर इस देखोगे, इस एग्जाम्पल में क्या कहता है कि -97 को हमने नियरेस्ट टेंस के फॉर्म में लिखा था, मतलब 100 के फॉर्म में। अगर यहाँ पे 100 की नियरेस्ट था इसलिए, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज वो 87 होता तो हम क्या करते, हम उसको फिर 90 में लिखते, 91 होता तो हम उसको 90 में करते, इजंट इट? ठीक है, तो कुछ ऐसा करा आपने यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -15 को नियरेस्ट 10 में लिखेंगे। तो नियरेस्ट 10 कौन सा है यहाँ पे उसके, तो नियरेस्ट 10 है उसके पास में 10, एंड देन -5 कर दूंगा तो मेरे को -15 मिल जाएगा। सो यहाँ पे इनका सम करते, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, -10, देन अब यहाँ पे मेरे पास साइन कौन सा है, यहाँ पे मेरे पास साइन है माइनस, तो मैंने यहाँ पे लिखूँगा माइनस, देन 532 मल्टीप्लिकेशन विथ 5। ओके, मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ 532 का, तो वो होगा 5320, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस साइन, देन माइनस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमको मिलेगा। ओके, अब सिंपली इसका क्या करना है, इसको यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, माइनस माइनस है दोनों के, तो सिंपली क्या ऐड होगा, और ऐड के बाद में हमको आखिरी साइन क्या होगा, माइनस का होगा। सो यहाँ पे हम कर देते हैं उनका एडिशन, 8 9 और ये हो जाएगा 7। ओके, सो 7980 इज़ द नंबर विच वी गेट मल्टीप्लाई फ्रॉम दिस नंबर। ओके, आप इसको कंफर्म भी कैसे कर सकते हो, कैसे, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर दो, एक माइनस साइन, तो आखिरी रिजल्ट जो आएगा वो माइनस में आएगा, इसलिए मैं माइनस में यहाँ पे लिखता नहीं हूँ। ओके, तो आपको मल्टीप्लिकेशन करना तो आता ही होगा, 5 × 10, 5 × 15, 16, 25, 26, देन 2 3 5। ओके, 0 8 9 एंड देन 7, 780 780 सेम आ गया। ओके, सो ऑन द बेसिस दिस we can conclude that if A, B and C are integers, then A multiplied by B minus C is equals to A multiplied by B, then minus sign and then A multiplied by C। ओके, यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन पे करा था, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पे क्या करा, मल्टीप्लिकेशन को चूज़ करा है सब्ट्रैक्शन करने की बजाय। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि आपने LHS में और RHS में अगर देखोगे तो सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, तो हमने उसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा था। यहाँ पे भी सिमिलरली हमने यही किया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिखा था। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे हम यही करते हैं। ओके, so this is about our distributive property. Okay, so today we have learned about 4 properties: multiplication by zero, multiplicative identity, then associative property, and then at last the distributive property. Okay, in the distributive property we also learned about the 2 formulas. First is this distributive property of multiplication over addition, and then this the distributive property and of multiplication over subtraction. Okay, so this is all about our today's class. We will see you in our next class, that is the Monday. So till then, have a good day and be safe at your home and do your homework and send me. Have a good day. Thank you very much. Goodbye.